people to love this character but at the same time see the actor behind the character. मेरे लिए बहुत ज़रूरी था इस कैरेक्टर का आना मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं थोड़ा थक गया था बॉय नेक्स्ट डोर, क्यूट बॉय, लाइट कॉमेडी फिल्म करके। मिर्जापुर इज वन सच सीरीज जहाँ पे आपको कोई भी कैरेक्टर के लिए अगर बुलाया जाता यू वुड हैव हैप्पीली अग्रीड। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप सीन करते हुए आपको बहुत अच्छा फील होता है, बट जब वो पर्दे पे आप देखते हैं और आप कहते हैं यार ये कुछ और दिख रहा है। अच्छी बात है कि मुन्ना की एक फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं, so they I'm sure they must be feeling proud. Which is your most favorite meme on Mirzapur 2 or Munna Bhaiya? बहुत सारे हैं। Munna Bhaiya is stuck in a lift with liquid from Pyar Ka Panchnama. What would they talk about? Oh man, wow. Divyendu, welcome back on Bollywood Hangama. Thank you so much. क्या आपने हंगामा किया हुआ है? आपका पिछला इंटरव्यू जो है वो 2 दिन YouTube इंडिया पे ट्रेंड किया उसने। हाँ यार, आई गॉट टू नो दिस। मुझे काफी देर बाद पता चला फरीदून। आई एक्चुअली सॉ योर ट्वीट ओनली एंड देन आई गॉट टू नो। यस यस यस, तो ट्रेंडिंग ऑन YouTube इंडिया फॉर 2 डेज। ये आपने एक जिसको कहते हैं कि एक एल्बेट्रोस स्वॉर्ड आपने अपने गले में आपने बांध ली है मुन्ना भैया की कि अब आपको मुन्ना भैया को बेटर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पीपल वुड एक्सपेक्ट यू टू बी मुन्ना भैया। इट्स लाइक गब्बर सिंह, अमजद खान, लाइक ये आप वही डायलॉग सुनो। I tell you what, why I'm hopeful is that because there is so much exciting stuff happening on OTT, and you know now all these great shows are coming which are based on these epic books and everything. So I'm hopeful that I would get something, but you're right to talk something Munna pe to yeah it's let's see how it goes. Let me be hopeful. And how do you respond to this absolutely amazing response that your character has got? Because the show has got a very good response, but some would say maybe, I think like any other show, there can be all sorts of opinions. Right. But unanimously, your character has got only and only positive reviews. Yeah, I mean, I feel good. I feel very fortunate, and I sincerely want to thank everyone because as important this character was for me, it was also very important for me to people to love this character, but at the same time see the actor behind the character. And they did that wonderfully with all the praises and everything. It's very, very, very heartening. I mean, you can't ask for more. Yeah, and to your final season, you're saying goodbye to the show, and you get such great reviews. I think you're ending on a high. Yeah, you can just thank God for that. मैंने इतने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि और लोगों का ये कहना है कि दैट वो सीजन 3 को मुन्ना भैया के बगैर इमेजिन करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं। किसी ना किसी तरीके तो फिट करिए मुन्ना भैया को कैसे भी। एंड फरीदून, डू यू नो दिस वेरी क्रेजी थियोरी? अच्छा, साइंस में अपेरेंटली देर इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो मेरे पास मुझे भेज रखा है किसी ने। सो देर इज अ फंडा that I think some 2% people in the world have their heart on the right side. Okay, so it's a deformity or whatever you want to call it. So these like the fans are saying कि मुन्ना क्योंकि बोलते हैं वो अमर हैं, और गोलू ने जब बंदूक यहाँ लगाई तो उन्होंने था कि यहाँ लगा दी थी। So he is actually that he has that syndrome where his heart is on the right side, and when she shoots, it's actually she's not shooting him in the heart, and he will come back. I read that and I was blown. I was like, what a beautiful conspiracy theory this is. No, but I think it's fascinating, and मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि हम लोग फिल्में देखते हैं, शोज देखते हैं अभी आज के टाइम पे, लेकिन कोई किरदार जो है उसके अंदर इतने इतने डिलीशियस शेड्स हों, विच आर सो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कि आप मतलब एकदम शिद्दत से आप नफरत कर सकते हैं इस किरदार से। एट द सेम टाइम वो जब वो अपनी बीवी से बता रहा है अपनी मोहब्बत के बारे में, और दैट हाउ एवरीवन हैज जस्ट यूज्ड हिम, एंड दैट एलिमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब इट इज एब्सोल्युटली बैफलिंग। जो रेंज है बहुत ज्यादा है, और वो कोई उसके अंदर कोई प्रिटेंस नहीं है। देयर इज नो प्रिटेंस। वो अच्छा बनने की डेलिबरेटली कोशिश नहीं कर रहा, वो नेचुरल चीज फ्लो करती है, which is fascinating. इट्स एक्चुअली फरीदून, मैं सच बताऊं, मैं क्योंकि मैं पिछली बार भी आपको बता रहा था कि मेरे लिए बहुत जरूरी था इस कैरेक्टर का आना मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं थोड़ा थक गया था बॉय नेक्स्ट डोर, क्यूट बॉय, लाइट कॉमेडी फिल्म करके। आई वॉन्टेड टू delve deeper into myself, as an actor.
and as an artist also. When Munna came, I was like, it's वो बोलते हैं ना कि जब actually आपकी soul इतनी उससे मांगती है, और मैंने for years I was like, why do people only like me in comedy, and you know I can do other stuff as well. तो सच में वो भगवान ने ना वो प्रेयर्स का आंसर मुझे मुझे मिलना ही था मुन्ना, मतलब क्योंकि मैंने इतने दिल से चाहा था कि कुछ मुझे अलग करना है, मुझे मिलना ही मिलना था. And when I got it, I knew there is enough meat in Munna to chew, and you seldom get these kind of characters where, like you said, it's got these beautiful and lovely shades, very opposite to each other. It's a perfect rainbow, so to say, for an artist, you know, to actually make. So मैं इतना खुश था, and this scene you're talking about, it जब मैंने वो scene perform कर रहे थे ना, इस जब वो जाता है और बोलता है कि पता है बुरा नहीं होता अगर हम कहीं क्लर्क भी होते, कम से कम कोई बेइज्जती तो नहीं करता. इट्स आई मीन जब मैंने वो पढ़ा भी था ना, ऐसा मेरा दिल अभी भी, मैं जब बोलता हूँ तो ऐसा मुझे सिंकिंग फीलिंग होता है. इट्स एक इंसान जिसको नहीं पता कैसे करना है, मतलब वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे गन्स और ड्रग्स की बात होती है, मॉम नहीं है पास में, पिताजी उतना प्यार नहीं करते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, भटक गया, उसको पता ही नहीं है एक्सप्रेस कैसे करना है खुद को. एंड दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी के ऑल्दो मुन्ना में बहुत शेड्स हैं, but at the same time he cannot look like a completely different guy also. The DNA has to be of Munna only, and then you have to proceed from there. So to find that soul was very important. At some point of time, you don't want him to die. After season one, you definitely want him to die. But by the end of it, the way he does not shoot his father, for example, or even apart from that is another dichotomy. And also if you come to see, Faridun, is actually season 1 में भी जो वो वेडिंग में जाके जो करता है, एक्चुअली भेज कौन रहा है, उसके फादर ही तो भेज रहे हैं. त्रिपाठी ही तो, अखंडानंद ही तो कहते हैं बेटा जाओ और ये लो मेरी गन भी ले जाओ. It's like this guy wants to impress his father so much that he says कि जाओ मार के आओ, and he says yes papa, I'll just go and kill people. I mean, because when I saw this character, no, I was like यार ये someone needs to go and tell him कि यार इतना टेंशन मत ले पापा को इम्प्रेस करने का, you are just finishing your life. तो वो जो भी whatever he says, you just blindly want to follow, and he just wants so much love. It's just so sad to see him, so sad. हम लोगों ने भी चाचा का भी इंटरव्यू किया recently. Oh wow! I got his number from Abhishek, and people love the interview. People absolutely love the interview, and there's so many positive comments. Divyendu, we've taken a few fan questions. I think fans deserve to get more of you and get to know your thoughts. I've taken from Twitter, Instagram, and Facebook. These questions are from Twitter. This is Sid Rao from Hyderabad. Do you enjoy doing light-hearted comedy roles more or intense villainous characters? There cannot be one answer to this question. That's the fun bit about it, that you enjoy when you get to play both. Otherwise, it tends to get repetitive. My personal calling is drama. I love drama. But yeah, I'm just blessed that people say that I have a fairly decent comic timing. So yeah, enjoy both. How much has FTII training helped you as an actor? A lot, because when I was in Delhi doing theater in my college, so like you say, theater is like, you know, अगर आपको singing सीखना है, you have to learn classical singing. आपके सुर पक्के हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी गायकी कर सकते हैं. So theater works like that, and it's always gonna be my first love, theater. बट मुझे एक था कि मुझे आगे जाके फिल्म्स में ही करियर अपना बनाना है. उसके लिए फिल्म की टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी था, एंड FTI हेल्प्स अ ग्रेट डील इन दैट यू नॉट ओनली लर्न अबाउट एक्टिंग, you learn about editing, camera, direction, sound. So you, all in all, you become a world cinema student rather than just an acting student. So that kind of knowledge really makes you a complete actor. इन फिल्म्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिल्म्स में ना आपका आर्ट बहुत कम यूज होता है. इट्स मोर टू डू विद योर क्राफ्ट, बिकॉज इट्स एक्चुअली द लाइट इज इतना पास लगा हुआ है, यू हैव टू हिट द मार्क ऑल्सो. अपने आप का फ्रेमिंग में भी आपको लेके आना है. सो इट्स जस्ट टू मच कैलकुलेशन एट टाइम्स. सो यू नीड दैट काइंड ऑफ नॉलेज वेयर यू कैन, it has to be, all this has to be in your subconscious, because you practice so much. And in FTI, because there are so many students, so you get to do a lot of student films.
जहाँ पे आपको बहुत ये चीज की प्रैक्टिस मिलती है. व्हाट एंगल सूट मी, हाउ डू आई लुक, मैं क्या करता हूँ, कैसे लगता है. बिकॉज कैमरा एक्टिंग इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन. इट कैन ओनली कम टू यू विद एक्सपीरियंस. आपको सीखना ही पड़ेगा. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप सीन करते हैं, करते हुए आपको बहुत अच्छा फील होता है, बट जब वो पर्दे पे आप देखते हैं और आप कहते हैं यार ये कुछ और दिख रहा है, and that has to do with lighting and the camera angle you're shooting with. So to understand all these technicalities, FTI was a great help. All right. This is Usman from Pakistan. Just want to say thank you for giving us Munna Bhaiya as a character. Big fan. And what are your next projects? तो उस्मान मियाँ, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसका नाम है बिच्छू का खेल, जो कि एक ऑल्ट का शो है जिसमें मैं आई प्ले अ राइटर. और काफी पल्प फिक्शन बुक्स जैसे होते हैं जो आपको बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे जो मिलते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी जैसे लिखते थे, वैसे ही एक अमित खान करके हैं, वो उनकी किताब पे है ये बिच्छू का खेल. हमने थोड़ा प्लॉट और स्क्रीन प्ले चेंज किया है अपने हिसाब से, लेकिन उसका जो कोर जो फील है वो ही रहेगा. आपको एक पल्पी, एक थोड़ा सा 80s की भी उसमें झलक दिखेगी, डायलॉग बाजी है. सो मजेदार चटपटी चाट टाइप है ये चीज. I hope you'd like it. This is Harsh from Mumbai. Hi Divyendu, love your performance in Mirzapur 1 and 2. Just want to ask, would you like to collaborate with Ranveer Singh and say some words for him? More love, keep work, success comes to you. Yeah, why not, man? Yeah. I mean, why would I say no? Yeah, definitely, yes. I like him. Yeah, he's a very good actor. I love his performance in Bajirao. Bajirao. I think he just that was very impressive. That one particular performance. Okay, this is Tanveer Raj Chaudhary from Silchar, Assam. Apart from Munna Bhaiya's character, which character would you like to play in Mirzapur series? Any other character that you would have wanted to play in Mirzapur? हाँ यार, I mean मिर्जापुर इज वन सच सीरीज जहाँ पे आपको कोई भी कैरेक्टर के लिए अगर बुलाया जाता, यू वुड हैव हैप्पीली अग्रीड. वो मतलब रेंज आपकी, चाहे राजा हो, मकबूल हो, मुझे प्रोस्थेटिक्स लगा के अगर बाऊजी का कैरेक्टर प्ले करना होता, डेफिनेटली आई वुड हैव लव टू प्ले someone like him. गोलू का कैरेक्टर, गुड्डू का कैरेक्टर, जस्ट इट्स अमेजिंग. आई मीन it's a beautiful buffet of characters. मतलब आप जाइए वहां पे, जो भी अच्छा लगता है, you just pick and have. It's all lovely. Okay, this is Avinash Mishra from Jamshedpur and उनका सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है. वो कहते हैं कि अगर सीएम भाभी आपकी तरह बाहर से आती कुछ करके, तब क्या आप भी उनको माफ कर देते? जिस मौके पे वो चीज हुई थी उस टाइम तो आई थिंक मुन्ना को कुछ भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता, बिकॉज उस टाइम तक वो मतलब कुछ ऐसा दिल से कुछ प्यार या कुछ फीलिंग्स नहीं थे माधुरी के लिए. आई थिंक इट वुड हैव गिवन हिम अ लेजिट, एक उसे बहाना मिल जाता ये कहने के लिए दैट दिस मैरिज इज नॉट वर्किंग एंड मुझे इससे बाहर निकलना है. इट्स ओनली बिकॉज हाउ शी हैंडल्ड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. और जब मुन्ना बीना से भी बात करता है कि ये जो मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई है पापा के कहने के चक्कर में, मुझे अपने लिए तो बुरा लगता ही है, बट आई फील बैड फॉर द गर्ल एज वेल, बिकॉज वट एवर इट वॉज वी हैड अ जेन्युइन कनेक्शन जितने भी दिन का इनका कोर्टशिप पीरियड था. बट ही नेवर थॉट कि शादी हो जाएगी. तो बाद में जाके बुरा लगता, बट उस दौरान अगर कुछ ऐसा होता तो शायद नहीं लगता उसको. आई थिंक वो एडवांटेज की तरह यूज करता उसको. This is Vicky from Gorakhpur. What was the most difficult scene for you to shoot? सीजन 1 की अगर बात करें तो उसमें कंपाउंडर किलिंग जो था, वो बहुत ज्यादा हार्ड था. Amazing. वो it just broke me as a character, and it was like a absolutely head-on collision sort of effect on me as an actor. Second में अगर बोलेंगे तो दो सीन्स हैं माधुरी के साथ ही, जब वो माधुरी को देखता है जब उनके पिताजी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, एंड ही sees someone who's even more vulnerable than मुन्ना, एंड फर्स्ट टाइम उसको रियलाइज होता है कि एक कंपैरिजन देखने को मिलता है कि जैसे मैं सफर करता था कोई और भी आज सफर कर रहा है. सो दैट चेंजेस क्वाइट अ लॉट इन हिम. एंड सेकंड जो हमने बात करी कि जब वो कहता है कि यार बुरा नहीं होता अगर हम क्लर्क होते तो कम से कम इज्जत तो मिलती. बहुत ट्रिकी था ये सीन मेरे लिए, बहुत ट्रिकी था, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, मैं
मतलब एकदम उसको चेंज नहीं करना चाहता था मुन्ना को, कि ऐसा ना लगे कि इंसान ही बदल गया। तो मुन्ना का ही सुर लेते हुए इस चीज को जस्टिफाई करना, इसका बात करना। अब बोला भी जाता है ना, जो ऐसे साधारण से सीधे बातचीत वाले सीन होते हैं ज्यादा ट्रिकी होते हैं हमेशा करने के लिए। दैट वाज अ हाई ड्रामा सीन्स में हमेशा आपको एडवांटेज मिलता है, दैट देयर आर ग्रेट डायलॉग, बाद में बैकग्राउंड स्कोर आएगा, एक्शन होगा, बट जस्ट कॉन्वर्सेशनल सीन्स are very, very difficult. So yeah, that one. Even the murder of Lalit. Oh, dude, yeah. Oh man, yeah. The way your expressions are. Yeah. It was a I moment. get a very, मुझे अभी भी ऐसा फील होता है ना जब ये सब बातें होती हैं, because like I was telling you, it's so unfair on this guy कि जिसको भी प्यार करता है यार उसको ना छिन जाता है इससे। It just hit after hit after hit, कितना लेगा यार, मतलब कितना लेगा एक इंसान। Yeah man, that was also very, उसमें तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बांध के रखना था खुद को। ज्यादातर यही होता है कि आपका पहले अंदर का सीन हो गया, वही इमोशनैलिटी लेके आपको बाहर गाड़ी वाला करना है, लेकिन वो डिफरेंट डे पे डिफरेंट टाइम पे शूट होता है, तो वो धागा बांध के रखना उसका ही कि वो जंप ना लगे, अंदर कुछ और था बाहर कुछ और था। सो या यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज आल्सो दैट वाज सम सीन मैन। या नाउ दीस आर few Facebook questions. This is Sudeep Mishra from Bankura, West Bengal. Is there any possibility to see you in next season, because without you it would not be the same Mirzapur? So that is a refrain from people generally. So sweet. बट डू ट्रस्ट मी, मिर्जापुर जो क्रिएटर्स हैं वो हमेशा इतने ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लेके आते रहेंगे आपके पास, तो आई एम श्योर आपको 3 देखने में ही बहुत मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं महाभारत में जो मैं समय हूँ शुरू में आता था, वैसा सा कुछ कैरेक्टर बन के आ जाऊँ। तो शुरू में मुन्ना बस ये बोला करेगा मैं समय हूँ, मैं बताता हूँ अभी तक क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो नैरेटर टाइप बन के आ जाए। मैं अमर हूँ। मैं मरूं, करेक्ट। या Alright, this is Sarfaraz from Mumbai. When can we see you as Liquid again? We love Munna Bhaiya, but deep down we miss Liquid from Pyar Ka Panchnama also. Any possibility of sequel of Pyar Ka Panchnama? could be, Another series? yeah, could be, never say never. Would be nice to revisit Liquid now. बहुत साल हो गए, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं उस इंटेंसिटी से, उतनी ऑनेस्टी से। फर्स्ट फिल्म थी, बहुत ऑनेस्ट होते हो, कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता है आप में, उम्र भी कम थी तो एज ए इंसान भी मैनिपुलेशन कम थी मेरे में, अब ज्यादा है। इट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी प्योर कैरेक्टर टू प्ले, जस्ट प्योरिटी, इमोशनल प्योरिटी। It would be interesting to see, yeah, play कर पाता हूँ। So, what is the feedback that you got from Karthik for Mirza, for Munna अभी Bhaiya? तक मेरी और उसकी बात नहीं हुई है। मतलब even for season 1? हाँ जी। Oh, okay, that's interesting. This is Tapan Patani from Mumbai. What preparations mentally you did for preparing this role, as you have never played such a character and people know you for comic timing, not for this type of character? आपका preparation क्या था? यार ये तो बताना बहुत मुश्किल है प्रिपरेशन क्या था, बट सबसे पहले जो चीज जरूरी थी वो थी इस इंसान को ह्यूमन की तरह दिखाना। कहीं भी ये कैरिकेचरिश ना लगे लोगों को, और ऐसा ना लगे लाइक ये तो मतलब रंजीत जी जैसे कैरेक्टर्स उस टाइम में जो हमारे हिंदी सिनेमा में होते थे कि बैड गाय का तो मतलब ये है कि मैं वो घर से निकलते ही लोगों का खून खराबा करने के लिए थे, उनका पर्सनल कुछ होता ही नहीं था डिलेमा। तो सबसे पहले तो ये जरूरी था मेरे लिए इस कैरेक्टर को ग्राउंडिंग देना कि वाई इज ही लाइक दिस, क्यों इतना इमोशनली वॉलेटाइल इंसान है ये, क्या हुआ होगा। तो उसके लिए आपको एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बनानी पड़ती है। तो मैंने बैक स्टोरी बनाई, किस तरीके से बचपन में क्या क्या इंस्टेंसेस हुए होंगे, इसकी माँ जो थी, माँ कैसे मरी होंगी, ये क्या अपने फादर को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, कितनी हद तक ठहराता है, फादर के साथ क्यों नहीं बनती है, क्यों इस तरीके का एक बिहेवियर है, क्या वो कुछ चीजें। तो आप जितना मतलब इन शॉर्ट जितना डिटेलिंग में जा सकते हैं चीजों की, अब पास्ट लाइफ की, उतना ज्यादा बेटर है। तो वो एक लंबा और बहुत ही एक बोरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप ज्यादा वो अच्छे से करेंगे, वो उतना ही खूबसूरत आपका कैरेक्टर दिखेगा। So a lot of backstory. Okay, so Divendu, these are a few Instagram questions. This is Atmanirbhar Aditya. अगर कालीन भैया बाप नहीं बन सकते तो मुन्ना भैया बेटे किसके हैं? इस पर भी मीम्स है। के बेटे हैं। आई थिंक पापा उस टाइम तक शायद पापा फिजिकलिटी पापा की ठीक रही होगी, क्योंकि मुन्ना 27 के हैं जब मरे हैं, तो 27 साल पहले तो आई थिंक काफी ठीक ठाक रहे होंगे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काम संभालते संभालते वर्कलोड प्रेशर हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई।
उस टाइम तो जवान रहे होंगे। तो दिस इज FZAC1137 सर, मिर्जापुर के बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि मैं वही बोल रहा था फरीद, उनके इतना इस कैरेक्टर को लोगों ने एज एन एक्टर इतना प्रेज किया है ना मुझे, दैट इट जस्ट हर चीज से ऊपर निकल गया कि ये डार्क कैरेक्टर है, या इसमें डार्क तो खैर मिर्जापुर के सारे ही कैरेक्टर हैं, लेकिन विलनी के कितने शेड्स हैं या क्या है। सो पीपल एक्चुअली सॉ मी बियॉन्ड दैट। एंड और जब बात वहां पे आ जाती है तो जब लोग आपको आपके क्राफ्ट के बारे में जब कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एंड अच्छी बात है कि मुन्ना की एक फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं। सो दे आई एम श्योर दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड। द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज कि दैट मुन्ना के बहुत से अपने लाइफ में इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, एंड ही हैज हिज शेड्स ऑफ ही हैज हिज डेज ऑफ जस्ट वैल्यूइंग इन सेल्फ पिटी एंड ऑल दोस थिंग्स एज वेल। लेकिन जब वो गुंडागर्दी कर रहा होता है उस टाइम पे वो बहुत बहुत खुश होता है। मतलब ही इज रियली एंजॉयिंग दैट मोमेंट, कि चाहे वो मकबूल बाबर को जब मारने के लिए पहुंच रहा है, या फिर जब शरद के वहां पहली बार पहुंचता है और वो यूसुफ को मारने के लिए जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो सारा का सारा वो फरमान जारी करता है, तो ही रियली एंजॉयज दोज मोमेंट, लाइक ही इज वेरी हैप्पी। अलग ही मजा आता है। इट्स टू डू, इसका भी एक बैक स्टोरी है। इट्स टू डू विद द काइंड ऑफ पेन ही फील्स। सो उससे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि उसको चैनलाइज करना नहीं आता है अपनी फीलिंग्स को। सो व्हेन ही इज गिविंग पेन टू अदर पीपल ही फील्स वेरी हैप्पी। ही फील्स के मैं सफर करता था, आप लोग भी सफर कर रहे हैं। इस मतलब हमेशा सोच के नहीं, आई एम टेलिंग यू अबाउट द सबकॉन्शियस ऑफ द कैरेक्टर। So that pain really attracts him. Pain gives him high. Pain gives him joy. It's only when his partner comes in his life he understands the other side of emotion as well. So उससे पहले pain बहुत attract करता है इसको. So he just it's almost like मतलब वहां जाके he just feels very एक बड़ी completion वाली feel आती है उसे कि this is what my inner chemical reaction is as a human. That's interesting. Okay, this is Anil since 92. Knowing the fact that the pandemic made most of the underrated actors into the audience bucket list, mostly in OTT or any digital platform. And if this situation goes long, then they will be so disastrous for high-budgeted films. And directors, producers might only focus on the content. And your kind of actors might have a chance to replace the stardom of Khans and Kapoors. Do your inner soul wish to linger on this situation? This is Anil Pangeni from Nepal. This is exactly what I was thinking in a way as well. That it is so baffling, like that in movies, to be honest, like आपका एक जो slotting है, जो slotting हमारे में होती है, जो हीरो का दोस्त है, he has a certain flamboyance around him, and that is something that mostly has been your forte in a way. But here, the sort of popularity that you're enjoying, I think the biggest of superstars would envy that. Yeah. And this I think this guy is right in terms of like the money part going out of the window because of pandemic, and the content ruling the roof. Yeah. And someone like you, I think it can be like a great situation for you today. Yeah, I tell you why. Because this medium works on merit, only and only merit. Because यहाँ पे आपको वीकेंड कलेक्शंस के बारे में नहीं सोचना है। आपको आपका शो एंड अ शो लाइक फार्गो, अ गेम ऑफ थ्रोन्स, दे आर जस्ट अ क्लिक अवे. सो योर कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली वेरी वेरी मेरिटोरियसली हाई. फिल्म्स की जहां तक मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से हमने भी ये देखा कि द सो कॉल्ड पॉपुलर एंड बिग फिल्म्स, ऐसा नहीं हुआ कि सारे फिल्म्स चले हैं. इनफैक्ट बहुत बहुत सारे डिजास्टर हुए हैं. एंड आई थिंक वो इसी वजह से है क्योंकि there is so much genuine content coming on OTT that the taste of audiences are changing. Filmmakers are much more brave on this platform. They can actually go and cast the person they want. They feel right for the role. It's not that कि कोई आपको बोल रहा है कि नहीं ये कर लो या ये कर लो, कलेक्शन इतनी आती है, जो कि भी मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है हमारी हर फिल्म हिट होती है. तो मतलब हम क्या बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की एंड दीज कैलकुलेशंस की. अगर इतने हम बड़े मतलब पंडित्स होते ऑफ नंबर्स तो हर फिल्म हिट जानी चाहिए थी. सो इट्स ओनली एंड ओनली अ परसेप्शन विच इज देयर इन फिल्म्स कि ये एक्टर को ये होगा और वो होगा. एंड
इट इज क्वाइट सैड कि अभी भी कुछ लोग हैं जो उस परसेप्शन पे जीते हैं. बट हाँ, ओटीटी इज लाइक अ टोटली एसिड टेस्ट है वो. आई मीन, अगर इफ यू डोंट होल्ड योर ग्राउंड, इफ यू डोंट हैव मेरिट, you will feel very naked on this platform. You just cannot survive here. So this platform has much more higher stake. All right, this is Srijita Mitra. What was his thought process of selecting roles after Pyar Ka Panchnama, as he was patient and took time in taking up projects? Srijita. तो पंचनामा अच्छी आई, बहुत बढ़िया हिट हुई फिल्म, एक कल्ट कैरेक्टर बना लिक्विड का फिल्म का. माय सेकंड फिल्म वाज चश्मे बदूर विद मिस्टर डेविड धवन, जो कि उससे भी बड़ी हिट हुई. एंड आई वाज इन अ वेरी वेरी हैप्पी स्पेस. बट जो हम स्लॉटिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि वापस ये होने लगा कि सिर्फ सारे दीज बॉय नेक्स्ट डोर एंड कॉमेडी फिल्म आने लगे. मैंने एक फिल्म करी थी 21 तोपों की सलामी, जो कि बड़ी अच्छी ड्रामा हैवी फिल्म थी. वो चल नहीं पाई, उसके जो भी कारण रहे हों. लेकिन हाँ, मैं उस टाइम तक आई वॉज वेरी अवेयर कि यार मुझे एक ही तरीके का काम नहीं करना है. एंड यस, इट वॉज वेरी टफ बिकॉज सेइंग नो टू बिग बैनर्स, सेइंग नो टू बिग डायरेक्टर्स एंड सेइंग नो टू बिग मनी इज नेवर इजी when you don't have anyone who's looking out for you. So बहुत बार सेल्फ डाउट भी होता था. But I think that was there was nothing which was satiating my artistic hunger. So I was just a very restless guy. कि मुझे एक ही तरीके का चीज नहीं, मुझे I have to do something else. I have to do something else. And yeah, I just took my time. I'm a lazy person also, to be very honest. I'm not very हाइपर competitive कि आज मैं जाके बाहर ये कर दूं और ये वीडियो करूं और ये सोशल मीडिया पे स्टोरी डालूं. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम very happy. I feel very blessed that I wanted to be an actor. Today I'm an actor, a professional actor. People love me, respect me. ये बहुत है अपने आप में. बाकी तो मतलब चलती रहेगी. But I never ever forget this core happiness that I get. That I wanted to be an actor. Today I'm a professional actor. I always go back to this feeling. So Divyendu, we'll end this interview with a quick rapid fire. What was your first reaction when you heard the climax of Mirzapur 2? Blown. I was blown away. Apart from Munna Bhaiya, which performance of yours do you consider the best? I think has to be Liquid. What is something about Guddu Pandit that fascinates you a lot? That how come he's like this, coming from a very educated family. His father is a lawyer, his brother is a pretty sensible guy, but he is very out of the place from the family. It was his choice to be on a violent journey. That was very fascinating for me. What sort of responses did you get for that particular scene when you just blow apart the head of Pablo? Yeah, it's. I mean, the credit has to go to the writers, to Puneet. It's a gruesome scene to watch. It's a gruesome scene to watch. Yeah, and he writes it like that. He writes it even more grossly, if that is possible. तो उनको tone down करते हैं. So he's like full on hardcore. But it was very tough on me. It was मुझे याद है, मैं शूट पे उस दिन भी पूछ रहा था गुरु से कि यार बहुत जरूरी है क्या करना, ये मतलब इतना करना. तो he said कि नहीं यार, अब ये लिखा है तो करना ही है. And that's the way how Mirzapur is. It's very unpredictable कैसे क्या होने वाला है. But yeah, the way it was done was, I think वो उतना ही hard hitting होना चाहिए जितना वो hard hitting था. Only then you realize the intensity of the whole thing. All right, which is your most favorite meme on Mirzapur 2 और Munna Bhaiya? बहुत सारे हैं. एक तो जो है ऐसा इमीडिएट नहीं सोचेंगे, उसके बहुत सारे आते हैं. तो इन्फिनिटी वॉर से है. कोई तो कुछ पूछ रहा है, आयरन मैन मुझे बनाया हुआ है और पापा को कैप्टन अमेरिका बनाया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हाउ डू वी गोना गेट थ्रू दिस सिचुएशन. तो आयरन मैन देख के बोल रहा है कि हाँ मतलब ऐसा इमीडिएट नहीं सोचेंगे. केबीसी में बच्चन साहब पूछ रहे हैं क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का. तो सामने मुन्ना बैठा और बोल रहा है कि ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं लेकिन सोचेंगे. Yeah, it's just a barrage of memes. And No, I find these people very creative. So I mean, a big salute to you guys. They are creative. Okay, if Munna Bhaiya is stuck in a lift with Liquid from Pyar Ka Panchnama, what would they talk about? Oh man, wow. I think Munna would be very fascinated looking at Liquid. You know, it's a very different species than him. It's who is Liquid is very docile also, but he's also very emotional.
Yeah, for Liquid it would be very weird to what to do now if this guy is there, क्योंकि Liquid एक पढ़ा लिखा तमीज़दार इंसान है लाइफ में. To have Munna, it's I think they're gonna be great friends because as they say opposites attract. So I think Munna बोलेगा कि तेरे को कभी भी कोई दिक्कत हो तू एक बार बोल देना बस हमको, टेंशन मत लेना. एंड हो सकता है लिक्विड उसके घर पे आके उसका मुन्ना का जो भी पीसी वगैरह का प्रॉब्लम है जो भी है उसको सॉल्व कर दे. इट वुड बी नाइस. और ऐसी कौन सी बात है जो मुन्ना कालीन भैया से बोलना चाहता था पर आखिर तक बोल नहीं पाया? I mean that he really wanted him to love him. इसी अंदाज में कहिए ना मुन्ना भैया के. बस यही कहना चाहते थे पापा कि एक बार गले लगाए होते और प्यार से साथ में बिठाए होते, कभी हाथ से खाना खिलाए होते, कभी हमसे भी पूछे होते हम कैसे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, मम्मी की याद आती है कि नहीं, दूसरी शादी करने से पहले कभी बात नहीं की है हमसे, सडनली आ गया घर पे एक दिन. तो इट्स जस्ट कभी पास सुलाते अपने यार, और कुछ नहीं एज अ फादर. और Okay, so I think let's stick to this clip. What one message Munna Bhaiya would want to give to his wife Madhuri उसी अंदाज में? दिया है शो में एक्चुअली. तो वही और शायद मुन्ना के जाने के बाद वो यही बोले कि अगर माधुरी सुन सकती हो उसे कि टेंशन मत लेना, हम अमर हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब भी कोई दिक्कत हो बस एक बार नाम पुकार लेना, जीप में खड़ा देखोगी. मुन्ना भाई, माधुरी अका ईशा तलवार या रॉबिन अका प्रियांशु, which new character impressed you more? I think both of them. रॉबिन का कैरेक्टर इतना मजेदार है, इतना मजेदार है, उसमें भी बहुत बढ़िया बनने वाला है वो कैरेक्टर आगे चल के. एंड फॉर माधुरी ऑल्सो देयर इज सो मच ड्रामा इन हर कैरेक्टर. वो पहले से एक विडो थी, दिस गाय कम्स, नाउ शी इज अगेन अ विडो, नाउ हर फादर इन लॉ इज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट हर, she's going to be the CM, there is lot of power thing going on, and Robin वहाँ पे बड़ी ही अलग फैमिली में अटका हुआ है, वो इंसान भी काफी अलग है. Hard to say one, I think दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. All right, मुन्ना भैया of season 1 या मुन्ना भैया of season 2, your favorite? I think to say Munna Bhaiya from season 2 would be a safe answer, but I would say Munna from season 1 because to make Munna like the way he is was very special for me. That journey, that process for me as an actor, to see him shaping up every day, every scene. Going into the second season, I had this comfort कि मैं अपनी मेहनत पहले कर चुका था, मैं एक कैरेक्टर बना चुका था. But to make that guy in season 1 was just so lovely. Okay, so we'll quickly just end this. This is complete the following sentences. The best compliment for playing Munna Bhaiya that almost brought tears to my eyes was that? I mean, जो second season में हुआ है, how people are reacting, that I mean, they are like, we cried watching the climax, and there were tears in our eyes. We can't imagine Mirzapur without you. It's so emotional. It's so emotional. Like I can sense that emotion. People are not just writing; they really mean it. Otherwise, उनको कोई जरूरत नहीं है इतना सब कुछ लिखने की. They write me such long messages that you gave us everything, emotion, drama, we loved you, we hated you. It's and they just thank me for giving them Munna. So that is, thank you so much. All right, Divyendu, lovely talking to you. Congratulations, congratulations, and I hope that as the gentleman from Nepal had said, that I think you get to the characters that you deserve right now, and the platforms are there to be grabbed, and I hope that we see you in a lot many more interesting characters, and superstars are bani chuke hain, and just enjoy the success. Thank you very much. All the best. Thank you, Faridun. Always a and pleasure. Thank you for the entertainment. Thank you for the it's personally I loved visiting the world. I love visiting the world of Munna. There's so many things. और मैंने चचा से मैंने बताया कि वो 30 सेकंड का जो बाइट है, तो उसमें वो कहते हैं कुछ कहना है, अगर आप कहते हैं कि इरशाद, तो कहते हैं कि तुम्हारे वाले, the way you say ये कौन हुए, even the way ये कौन हुए, I find that so funny. It's so I know. It is. All right, thank you, man, and all the best wishes. Congratulations. And happy Diwali. Happy Diwali to you, and happy Diwali to you too, to everyone. Bye bye.